উপস্থিত সকলকে আমাদের প্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে আরেকবার আমাদের সকলকে আমি স্বাগত করি, জ্ঞাপন করি। সকলকে জয় যিশু, জয় মসিহ কি। কিন্তু সেখানে থাকিয়া যদি তোমরা আপন ঈশ্বর সদা প্রভুর অন্বেষণ করো, তবে তাহার উদ্দেশ্য পাইবে। সমস্ত হৃদয়ের সহিত ও সমস্ত প্রাণের সহিত তাহার অন্বেষণ করিলেই পাইবে। সুসমাচার 10 অধ্যায় 2 পদ পাঠ করছি, ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করি। তিনি তাহাদিওকে বলিলেন, শস্য প্রচুর বটে, কিন্তু কার্যকারী লোক অল্প। অতএব শস্য ক্ষেত্রের স্বামীর নিকটে প্রার্থনা করো, যেন তিনি নিজ শস্য ক্ষেত্রে কার্যকারী লোক পাঠাইয়া দেন। ঈশ্বর তার বাক্যে আমাদের সকলের জন্য আশীর্বাদ দান করুন। হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, আমাদের সৃষ্টিকর্তা দয়ালু ঈশ্বর, তোমার মহান নামে আরেকবার ধন্যবাদ জানাই পিতা। 39তম বার্ষিক সম্মেলন তুমি শুক্রবার থেকে আজকের এই সময় পর্যন্ত পরিচালনা করেছো পিতা, পরিচালনা করে আসছো, তাই পিতা তোমার কাছে ধন্যবাদ জানাই। দয়ালু ঈশ্বর, আজকে এই প্রাচীন অভিষেক অনুষ্ঠানে তুমি আমাদেরকে আরেকবার আসার সুযোগ প্রদান করেছো, তাই পিতা তোমার কাছে ধন্যবাদ জানাই। দয়ালু ঈশ্বর, আজকে আমাদের এই প্রাচীন অভিষেক অনুষ্ঠানের যা কিছু কার্যসূচি আছে তুমি আশীর্বাদ করো। সমস্ত প্রোগ্রাম, সমস্ত কার্যসূচি যাকে আমরা তোমার নামে অভিষিক্ত করবো, তুমি তাকেও প্রস্তুত করো। যিনি তোমার বাক্য বা উপদেশ ভাষণ দেবেন, তার মাধ্যম দিয়েও তুমি আমাদের সঙ্গে কথা বলো। যে গীত আমরা গাইব তোমার প্রশংসার উদ্দেশ্যে, সেই গীতের মাধ্যম দিয়েও পিতা তুমি আমাদের সাথে কথা বলো। যারা তোমার প্রশংসা গান করবে তাদের সমস্ত কিছু দ্বারা তুমি গৌরবান্বিত হো। ক্ষুদ্র নিবেদন প্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে চাই। এখন আমাদের সম্পাদককে আহ্বান করবো। উনি যা কিছু প্রয়োজনীয় ঘোষণা আছে ঘোষণা করবেন, এবং যদি স্থানীয় মন্ডলীর যদি কিছু ঘোষণা থাকে আমাদের সম্পাদকের আমাদের সম্পাদক ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। আসুন আমি কার্যসূচির দিকে যাই। 12-10-2025 রবিবার সকাল 10 ঘটিকায় প্রাচীন অভিষেক অনুষ্ঠান। উপদেশমূলক ভাষণ সঙ্গীত দল উদাহরণ ও করিমগঞ্জ জেলা, সেই সভায় সঙ্গীত দান দেশপ্রীতি তহবিলে যাবে। দুপুর 12 ঘটিকায় মধ্যাহ্নের আহার, দুপুর 2 ঘটিকায় পবিত্র প্রভু ভোজের অনুষ্ঠান। পরিচালনায় মডারেটর গোয়ার প্রেসবিটারি, সঙ্গীত দল ভাগা ও কৈলাপুর। কৈলাপুর জেলা বিকাল 4 ঘটিকায় চা পান। পরবর্তী ঘোষণা পরবর্তীতে
ঘোষণা করব। তাছাড়া দুপুর 2 ঘটিকায় পবিত্র প্রভুর ভোজের অনুষ্ঠানে যাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া আছে তাদের আমি নাম পাঠ করব। মিনিস্টার, পাস্টর এবং পুরো পাস্টর, রেভারেন্ড সিংময় পুরো পাস্টর, রেভারেন্ড লালরামদিন থারা, রেভারেন্ড বাংলা সুঙ্গা, রেভারেন্ড জয়ন্ত মালার, রেভারেন্ড জে রুয়াকা, রেভারেন্ড আপনলাল দেব, রেভারেন্ড লালিন থারা, এল্ডার মানিক কালেন্দি, এল্ডার সফল সেনাপতি, এল্ডার এসপি সুমার, এল্ডার নিমাই দে, এল্ডার বাবুল বিশ্বাস, এল্ডার ছোট ভূমিজ, এল্ডার গোল সাহা, রেভারেন্ড কেসি লালিন পুয়া। যে সাক্রামেন্ট তৈরি করবে তাদের নাম পাঠ করি। এল্ডার নজরুল লস্কর, এল্ডার বেল শর্মা, এল্ডার রানু বাগদি, এল্ডার রবি পাত্র, এল্ডার বব আইজা। এই হচ্ছে ঘোষণা। তাছাড়া এখানে একটি চাকরি পাওয়া গেছে AS 01 AE 6511, সেটা আপনাদের কাছে আছে, আমাদের নিয়ে নেবেন। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আজকে এই রবিবারের আমাদের এই এই বছরের মিটিংয়ে আজকের দিনে যারা আমাদের এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন যে কোনো ডিস্ট্রিক্ট থেকে আমরা হতে পারি আমার পরিবার জানানোর জন্য request those who have come for the first time in this meeting they will stand on their feet. We have from any district, যে কোনো district থেকে হতে পারে, সেটা আপনারা জানাবেন। যারা প্রথমবার এসেছেন আমাদের এই সম্মেলনে, যে কোনো district, শিলচর, কালীগঞ্জ, হাইলাকান্দি, বাংলা, অনেক ধন্যবাদ। আপনারা অবশ্যই আপনাদেরকে আরেকটিবার আমাদের এই সম্মেলনে স্বাগত জানাই। তাছাড়া আমাদের আরেকটা রিকোয়েস্ট আছে, এই হোস্টিং মন্ডলী থেকে আমরা যে রিসেপশন কাউন্টার যে বানিয়েছে, সামনে আছে রিসেপশন কাউন্টার, সেই কাউন্টারে আমরা ডেলিগেটস যেটা অনেক সময় গিয়ে বসে থাকি, অসুবিধা হয়ে থাকে, সেই জন্য আমরা চেষ্টা করবো ডিস্টার্বেন্স অসুবিধা সমস্যা না দেয়, সেখানে গিয়ে যখন না বসি আমাদের এখানে গির্জাঘরের বারান্দা এবং আশেপাশে প্রসাদ আছে, অনেক বড় চা বাগান আছে, করতে পারবো। রিসেপশন কাউন্টারে আমরা বসবো না। আমরা সকলে দাঁড়িয়ে একটা গান করবো। 226 যিশু তোমায় ভালোবেসেছি, এবং এই গানের পর আমাদের চাঁদা যা কিছু আমরা সংগ্রহ করেছি সেটা আমরা নিয়ে আসবো সামনে। আর এই চাঁদা উৎসর্গ করার জন্য এবারে জয়ন্ত মার্কে আমরা সকলে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের প্রশংসাতে 126 সংখ্যা গান। Ave, Ave, Ave,
আইসন প্রার্থনা করি। প্রভু তোমার বাক্য বলে জগৎ এবং তার তন্নিবাসিনীগণ এবং সমস্ত বস্তুই সদা প্রভু। আজকের এই সকালে প্রভু সেই বাক্যকে আমরা অঙ্গীকার করি এবং প্রভু আমাদের কাছে যাহা কিছু আছে প্রভু সকলেই তোমারই দেওয়া। সেই আশীর্বাদের ভাণ্ডার থেকে প্রভু অল্প দান প্রভু এই সময় তোমার চরণে আমরা নিয়ে এসেছি। এই সময় আমরা প্রার্থনা করি প্রভু তুমি এই দানকে গ্রহণ করো, সূচি করো, পবিত্র করো এবং প্রভু তোমার রাজ্য এবং তোমার ধার্মিকতার জন্য ইহাকে ব্যবহার করো। এই প্রার্থনা প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে চাই। আমেন। আমরা এই সময় আরেকটিবার সকলে দাঁড়িয়ে মার্কিন সুসমাচার 12 অধ্যায় 29 থেকে 31 পদ পর্যন্ত আমরা বাইবেল এনেছি। আমরা বলব বাইবেল মার্কিন সুসমাচার 12 অধ্যায় 29 থেকে 31 পদ পর্যন্ত আমরা একসাথে পাঠ করব। সকলে দাঁড়ায় মার্কিন সুসমাচার 12 অধ্যায় 29 পদ থেকে 31 পদ পর্যন্ত আমরা একসাথে সকলে পাঠ করি। যিশু উত্তর করিলেন, প্রথমটি এই, হে ইসরায়েল শুনো, আমাদের ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু। আর তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত মন ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে। দ্বিতীয়টি এই, তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মতো প্রেম করিবে। এই দুই আজ্ঞা হইতে বড় আর কোন আজ্ঞা নাই। হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম পবিত্র হোক, তোমার রাজ্য আসুক, তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন এই পৃথিবীতে নিশ্চিত করো। আর আমাদের প্রয়োজনীয় মণ্ডলীর বিশ্বাস বচন। ভারতের প্রেসবিটারিয়ান মণ্ডলীর পলিটিক ধর্ম বিশ্বাস, নাইসিয়ান বিশ্বাস বচন, ওয়েস্টমিনিস্টার কনফারেন্স অফ ফেথ এবং ওয়েলস প্রেসবিটারিয়ান মণ্ডলীর বিশ্বাস বচনকে ঈশ্বরের বাক্যের যোগ্য ভাষ্যরূপে মণ্ডলীকে তথা ঈশ্বর তত্ত্ব শিক্ষা যতনে আদেশ খ্রিস্টীয় ধর্মনীতি রূপে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে গ্রহণপূর্বক নিম্নলিখিত
রচিত অনুচ্ছেদগুলো তাহার অধীনস্থ পরিচালক বিন্দু, শিক্ষানবিশ পালক ও প্রাচীনবর্গ তথা সকল পূর্ণ সভ্য সভা দ্বারা সমৃদ্ধ সহ অনুষ্ঠিতি হওয়ার জন্য বিশ্বাস বচনরূপে গ্রহণ করিয়াছে। অনুচ্ছেদ 1 পুরাতন এবং নতুন নিয়মের ধর্মশাস্ত্রগুলি ঈশ্বরের বাক্য এবং বিশ্বাস ও কর্তব্য নির্ধারণের একমাত্র আপদ অভ্যন্ত বিধি নিয়ম। অনুচ্ছেদ 2 ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় এবং তিনি একমাত্র উপাসনা আরাধনার যোগ্য। তিনি আত্মার স্বয়ম্ভ সর্বত্র বিদ্যমান, তথাপি অন্যান্য আত্মাগুলো ও বিষয় বস্তু থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, স্বতন্ত্র। তিনি নিজ আত্মার প্রজ্ঞার পরাক্রমে, পবিত্রতায়, ন্যায় বিচার, দয়ায়, সত্য ও প্রেমে অপরিবর্তনীয়ভাবে অসীম ও অনন্ত। অনুচ্ছেদ 3 সর্বোপরি ঈশ্বর সত্তা, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা, এই 3 ব্যক্তি আছেন এবং এই 3 জন একই ঈশ্বর, একই সত্য সমপরাক্রমে ও গৌরবে বিদ্যমান। অনুচ্ছেদ 4 ঈশ্বর যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং এর মধ্যস্থ সকল বস্তু নির্মাণ করিয়াছেন, তিনি মানব জাতিকে নিজ প্রতিমূর্তিতে জ্ঞানে, ধার্মিকতায় ও পবিত্রতায় পুরুষ ও স্ত্রী রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। মানব জাতির সৃষ্টির উৎস এই এবং সকলেই পিতা ভগ্নী রূপে একই পরিবারভুক্ত। অনুচ্ছেদ 5 মানবগণ নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছায় ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করে অপরাধে ও দুর্নীতিতে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলে। এই অপরাধ, দুর্নীতি ও পাপের শাস্তি থেকে তাদের রক্ষা এবং অনন্ত জীবন দান করিতে ঈশ্বর তার অসীম প্রেমে নিজ পুত্রকে প্রভু যীশু খ্রিস্টকে এই পৃথিবীতে পাঠাইলেন, যেন কেবল তার মাধ্যমে মানব জাতি পাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে। এই শাশ্বত পুত্র পৃথক মনুষ্যরূপে ধারণ করিলেন। হ্যাঁ, তিনি তাই হলেন এবং সত্য ঈশ্বর এবং শাস্তিক মানব, এই দুই ভিন্ন প্রকৃতিতে কিন্তু একই ব্যক্তিত্ব যুগ পর্যায়ে যুগে যুগে বিরাজমান। পবিত্র আত্মার পরাক্রমে তিনি মাতৃগর্ভে সঞ্চারিত হয়ে ও কুমারী মরিয়মের গর্ভজাত হয়ে নিষ্কলঙ্ক অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। পাপী মানব জাতির জন্য ঈশ্বরের ব্যবস্থা বিশুদ্ধভাবে পালন করেন এবং ঈশ্বরের ন্যায় বিচার অনুযায়ী মানব জাতিকে ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলিত করিতে নিজকে এক পৃথক ও বিশুদ্ধ বলিরূপে উৎসর্গ করেন। তিনি ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেন, সমাধিত হন এবং তৃতীয় দিনে মৃত্যুদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হন। তিনি উদ্ধৃত হয়ে ঈশ্বরের দক্ষিণ পাশে থেকে তার লোকদের জন্য মধ্যস্থ হয়ে প্রার্থনা করছেন এবং সেখান থেকে তিনি মৃত্যুদের জীবিত করিতে এবং জগতে ন্যায় বিচার করিতে আবার আসিবেন। অনুচ্ছেদ 6 পবিত্র আত্মা যিনি পরম পিতা ও পুত্র হস্তে অভিভূত, তিনি মানব জাতিকে পরিত্রাণের অংশীদার হতে সাহায্য করেন, পাপ ও ক্লেশ সম্বন্ধে চেতনা দেন, খ্রিস্টের জ্ঞানে মন ও হৃদয়ে আলোকিত করেন, সংকল্প ও ইচ্ছাকে নবীকরণ করেন, খ্রিস্টকে প্রভু ও রাজা রূপে গ্রহণ করিতে অনুপ্রাণিত ও সক্ষম করেন এবং ধার্মিকতার ফল উৎপাদনের জন্য মানব জাতির মধ্যে কাজ করে থাকেন। অনুচ্ছেদ 7 খ্রিস্টের মাধ্যমে ঈশ্বর মানব জাতিকে সম্পূর্ণ পরিত্রাণ বিনামূল্যে প্রদান
করেন। মানব জাতিকে পাপের জন্য অনুতাপ হতে প্রভু যীশু খ্রিস্টের দানকর্তা বলে বিশ্বাস করতে এবং খ্রিস্টের যে ভাব ঈশ্বরের ইচ্ছা বাহিত থাকা নম্র ও পবিত্র জীবন যাপনের উদাহরণ দিয়েছেন, সেই আদর্শ জীবন যাপন করার আজ্ঞা দেন যারা খ্রিস্টে বিশ্বাসী ও তাহার আজ্ঞা তাহার পরিত্রাণ প্রাপ্ত পাপের ক্ষমা পেয়ে যাচ্ছে, ন্যায় বিচারের ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার অধিকার, অনন্ত বসবাসকারী পবিত্র আত্মার মাধ্যমে পবিত্রকৃত ও অনন্ত গৌরবের অধিকার হইয়াছেন। বিশ্বাসীগণ তাদের জীবনদায়ের পরিত্রাণের অঙ্গীকৃত ফল উপভোগ করিতে পারে। পবিত্র আত্মায় তার অনুপযুক্ত কাজ এর মাধ্যমে ঈশ্বরের বাক্য পবিত্র সংস্কারগুলি ও প্রার্থনায় বিশেষভাবে ব্যবহার করে থাকেন। অনুচ্ছেদ 8 খ্রিস্টের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পবিত্র সংস্কারগুলো হচ্ছে বাপ্তিস্ম ও প্রভুর ভোজ। বাপ্তিস্ম সংস্কার হচ্ছে পিতা ও পুত্র এবং আত্মার নামে জল দ্বারা ধৌত হওয়া এবং খ্রিস্টের সঙ্গে সম্মিলন, আত্মিক নবজন্ম লাভ এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা নবীকৃত হওয়ার একটি বাহ্যিক চিহ্ন ও মুদ্রাঙ্কিত রূপে এবং নিজেদেরকে প্রভুর কাছে সমর্পণের একটি কাজ। যারা নিজেদের পাপের মন্দ কাজের জন্য অনুতাপ করে এবং খ্রিস্টকে তাদের পবিত্র রূপে বিশ্বাস করে বলে ঘোষণা করে তাদের ও তাদের সন্তানদেরকে এই সংস্কার দেওয়া হয়। পবিত্র প্রভুর ভোজের সংস্কার হয়েছে খ্রিস্টের মৃত শরণার্থে রুটি এবং পানপাত্র অংশ নিয়ে সহভাগিতা করা। ইহাই বিশ্বাসীদের জীবন লাভবান হওয়ার একটি চিহ্ন ও মুদ্রাঙ্কিত বটে। খ্রিস্টতে বিশ্বাসের চিহ্ন স্বরূপ ও তার আত্মার বলিদান, আত্মিক লাভ সমূহের যথার্থ ব্যবহার তার সেবা আরও অধিক উপচার করায় এবং তার সাথে তথায় পরস্পরের সাথে সহভাগিতার নিদর্শন স্বরূপ খ্রিস্টের পুনরাগমন পর্যন্ত বিশ্বাসীগণ এই পবিত্র অনুষ্ঠান পালন করে যেতে হবে। বিশ্বাসের মাধ্যমে পবিত্র ভোজ গ্রহণকারীদের মধ্যে পবিত্র আত্মার কাজ করে ও ভোজনজনিত লাভ খ্রিস্টের আশীর্বাদের মধ্যে নামিয়া এসে। অনুচ্ছেদ 9 সকল বিশ্বাসীগণ অবশ্য কর্তব্যগুলি হচ্ছে মণ্ডলী সহভাগিতা, একত্র হওয়া, পবিত্র সংস্কারগুলো ও খ্রিস্টের অন্যান্য আকারগুলো পালন করা, তার বিধি ব্যবস্থাদি বাধ্য হওয়া, প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকা, প্রভুর দিন পবিত্র রূপে রক্ষা পালন করা, তার আরাধনায় সকল সম্মিলিত হওয়া, তার বাক্যের প্রচার মনোযোগ সহকারে শোনা, ঈশ্বর যেভাবে বৃদ্ধি দিয়েছেন কৃতজ্ঞ সহ সেইভাবে দান করো, নিজেদের মধ্যে তথা সমগ্র মানব জাতির প্রতি খ্রিস্টের চিত্তে আত্মিক মনোভাব প্রকাশ করো। বিশ্বব্যাপী খ্রিস্টের রাজ্যে বিস্তারিত কাজ সচেষ্টা হয়ে এবং তার গৌরবজনক প্রকাশ প্রাপ্ত অপেক্ষা করা। অনুচ্ছেদ 10 শেষ দিনে মৃত্যুদের উত্থান হবে এবং সকলেই খ্রিস্টের বিচারাসনের সম্মুখীন হইবে। এই বর্তমান জীবন যে যেমন কাজ করছেন, ভালো বা মন্দ, সেই অনুযায়ী সকলেই বিচারিত হবে। অবিশ্বাসী ও দুষ্টগণ দূষীকৃত হয়ে তাদের
পাপের জন্য শাস্তি ভোগ করিবে, কিন্তু যারা খ্রিস্টের বিশ্বাসে স্থাপন করে, যারা তার আজ্ঞা পালন করেছে, ওরাই প্রকাশে নির্দোষী প্রতিপূর্ণ হয়ে তাহার গৌরবে প্রবেশ করবে। অনেক ধন্যবাদ বিশ্বাস বচন জন্য। আমাদের সম্পাদককে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই, করবো। এই ব্যক্তি শ্রী অলিভ দেমতা আমাদের মণ্ডলীর প্রাচীন পদের জন্য অভিষেক করব। তিনি কি আমাদের মণ্ডলীর সংবিধান ও প্রথা অনুসারে নির্বাচিত হয়েছেন? হ্যাঁ, মাননীয় মডারেটর, এই ব্যক্তি আমাদের মণ্ডলীর প্রাচীন হওয়ার জন্য সংবিধান ও কথা অনুসারে নির্বাচিত হয়েছে বলিয়া আমি সংবিধানকে জ্ঞাত করিয়াছি। অনেক ধন্যবাদ। এই সময় আমি আমাদের অভিষেক প্রার্থী শ্রী অলিভ দেমতাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো, তাই জানালে ভালো। আমাদের মণ্ডলীর বিশ্বাস বচন ও খ্রিস্টীয় চরিত্রের নির্দেশিকা বাইবেলের সত্য শিক্ষা বলে আপনি কি গ্রহণ করেন? অনেক ধন্যবাদ। দ্বিতীয় প্রশ্ন, আমাদের মণ্ডলীর সংবিধান মণ্ডলী পরিচালনার জন্য যথেষ্ট বলে কি আপনি গ্রহণ করেন? হ্যাঁ, আমি গ্রহণ করি। তৃতীয় প্রশ্ন, মণ্ডলী ও পবিত্র আত্মা আপনাকে এই প্রাচীন কাজের জন্য আহ্বান করেছেন, আপনি কি সেই প্রাচীনের কাজ বিশ্বস্তভাবে করার জন্য প্রস্তুত আছেন? হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত আছি। 4 নম্বর প্রশ্ন, আমাদের মণ্ডলীর সম্মেলনের অধীনে বাধ্য হয়ে থাকার জন্য আপনি কি প্রস্তুত আছেন? হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত আছি। অনেক ধন্যবাদ। সার্টিফিকেট আমরা প্রদান করব। এখানে সার্টিফিকেটটি লেখা আছে, সম্পূর্ণ করব না, শুধু সিরিয়াল নাম্বার আছে, তার নাম আছে এবং সেক্রেটারি আছে। তুমি আপনাকে ঈশ্বরের কাছে পরীক্ষা সিদ্ধ লোক দেখাইতে যত্ন করো, এমন কার্যকারী হও যাহা লজ্জা করিবার প্রয়োজন নাই, যে সত্যের বাক্য
যথার্থ রূপে ব্যবহার করিতে জানে। আর এখন প্রভুর নিকটে ও তাহার অনুগ্রহের বাক্যের নিকটে তোমাদিওকে সমর্পণ করিলাম। তিনি তোমাদিওকে গাঁথিয়া তুলিতে ও পবিত্রীকৃত সকলের মধ্যে দয়াধিকার দিতে সমর্থ। আমেন। আমরা সকলে বসব। এখন আমরা আমাদের প্রাচীন প্রবর্তন করব। তখন আমি প্রবর্তন করব। আমাদের নতুন মডারেটর প্রবর্তন করবেন। এই সময় আমরা বিশেষ গান শুনবো। গানের দল করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট কোয়ার এবং উদারগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট কোয়ার তারা বিশেষ গান পরিবেশন করবেন। প্রথমত আহ্বান করব করিমগঞ্জ গানের দল এবং তারপর গানের পর উদারগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট কোয়ার গান পরিবেশন করবেন। সর্বপ্রথমে আহ্বান করি করিমগঞ্জ গানের দল। Duduk.
ISO isang kataro ng dito. Pagkakataon, Jela Ganegol, Philosophia sa de Jela Ganegol, siguro na English na portion mo. minsan ay tumbalik sa TV. Ishmoy, Subodesh, o Kapuna, exhortation speech and prayer. Portion mo. Reverend J. Lalendrota, সময় দেব। Reverend J. Lalendrota, দিয়েছেন বাগা জেলা সভা আলো। আমরা Reverend J. Lalendrotaকে সময় দেব। Gusto ito? Nakalaman ako rin. प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपको कोटि धन्यवाद देते हैं। इसी समय में पिता परमेश्वर इस वचन को भी आप आशीष करके हम सभी के लिए आशीष कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन सुनते हैं। यूहन्ना 21 अध्याय 17 पद। यूहन्ना 21 अध्याय 17 पद। उसने प्रभु यीशु मसीह ने उसने तीसरे बार उससे कहा, हे समौन यूहन्ना का पुत्रा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार का ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी बैरों को चरा। यीशु ने उससे कहा, मेरी बैरों को चरा। परमेश्वर अपने पवित्र वचन पर आशीष दे, आमीन। मैं एक परमेश्वर का कलीसिया का महान कलीसिया का प्राचीन बेटा हूँ, इसलिए मैं प्राचीनों को बहुत इज्जत देता हूँ। मैं उनका कामों को, उनका बोझ को समझ सकता हूँ। इसी के साथ साथ मैं बहुत उम्मीद भी करता हूँ उनमें। आज मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर ने इतना अच्छा समय मुझे दिया है, और हम सब भी खुश होना जरूरी है कि परमेश्वर ने शांति का समय, आराम का समय आज हमें देके हमें एक नया प्राचीन दिया है। इस कारण से हमें भी परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है। परमेश्वर का वचन ने हमको बताया है कि नीति वचन 11 अध्याय 14 पद में, जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है। पुराने सालों से जब परमेश्वर ने उस लोगों को स्थापित किया था, शुरू से ही परमेश्वर ने उस लोगों को अगुवाई करने के लिए नेताओं को नियुक्त किया करता था। परमेश्वर ने उन लोगों को अपना मर्जी से रहने के लिए नहीं छोड़ते हैं। उनको अगुवाई करने के लिए अगुवाईकर्ताओं को नियुक्त किया करता था। आज तक परमेश्वर ने कलीसिया में भी हमें अगुवाई करने के लिए अगुवाईकर्ताओं को दिया है। इसी समय में भी परमेश्वर ने हमें एक प्राचीन दिया है हमें अगुवाई करने के लिए। कलीसिया का जरिया से हमने इसको चुना है, पर यह सिर्फ कलीसिया का हाथ नहीं है, परमेश्वर का हाथ इसमें है। परमेश्वर ने इसको नियुक्त किया है हमें अगुवाई करने के लिए। ये कमजोर व्यक्ति भी हो सकता है, उसमें बहुत कमी भी हो सकता है, पर हमें विश्वास करना है कि इस व्यक्ति में परमेश्वर ने कुछ देखा है, इसलिए परमेश्वर ने इसको हमारा कलीसिया को अगुवाई करने के लिए चुना है। इसको कलीसिया का सदस्यों हमें
पूरी हृदय से सबसे पहले मानना बहुत जरूरी है। एक सबसे पहले पॉइंट में इसी के बारे में प्रेस्बिटेरियन कलीसिया का तरीका में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। प्रेस्बिटेरियन कलीसिया में 2 प्रकार की नियुक्त सेवकाई होते हैं, जैसा हम बोलते हैं ऑर्डेन मिनिस्ट्री। एक जो है पादरियों का पद हम बोल सकते हैं, पादरियों का ऑफिस, पादरियों का पद हम बोल सकते हैं, वो जो एक पूर्णकालिक सेवकाई है, फुल टाइम मिनिस्ट्री हम कहलाते हैं, पूर्णकालिक सेवकाई है। और दूसरा है प्राचीनों का पद। और प्राचीन और पादरियों का काम जो है, जिम्मेदारी और कार्य जो है एक समान तो नहीं है, फिर भी उनके सेवकाई एक ही है, उनके सेवकाई जो है एक ही है। कलीसिया का शुरुआत से कलीसिया ने एक पूर्णकालिक सेवकाई, फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए एक निश्चित व्यक्ति को नियुक्त किया करता था। जब कलीसिया का समय में शुरुआत से हमने इसको देखा है। सबसे पहले हमने अपोस्तल पौलुस को देखा है, जब वो अपोस्तल पौलुस अपना पादरी सेवकाई आरंभ करने वाला था, परमेश्वर ने कलीसिया की ओर से हनन्याह, एक प्राचीन कलीसिया का प्राचीन हनन्याह को उसके ऊपर में हाथ रख के प्रार्थना करने के लिए भेजा था। उसके बाद पौलुस ने अपना सेवा शुरू किया था। इसी प्रकार प्राचीनों के बारे में भी प्रेरितों के काम में हमने देखा है कि कलीसिया ने प्राचीनों को सेवकाई में कैसा नियुक्त किया करता था। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 3 पद में हमने देखा है कि पादरी पौलुस ने जहां भी उसने कलीसिया को स्थापित किया था, वहां प्राचीनों को नियुक्त किया करता था। उसी ठीक प्रकार जब पादरी तीमुथियुस ने भी उसका सेवा आरंभ करने वाला था, उसी समय में प्राचीनों ने उसका ऊपर में हाथ रख के उसी के बाद उसका सेवा को शुरू किया था। इसी प्रकार में कलीसिया का शुरुआत से पादरियों और प्राचीनों का सेवकाई जो है एक साथ में जुड़े हुए थे। इस बात को हमारे इस सेवकाई में शुरू करने से पहले हमें स्पष्ट रूप से जानना बहुत जरूरी है। एक साथ में काम करते हैं, आज तक हम एक साथ में काम करते हैं। 3 शब्द जो कलीसियों का अगुवाई कर्ताओं को पुकारने के लिए बाइबल ने इस्तेमाल किया है, जैसा एपिस्कोपोस, पोइमेन और अध्यक्ष जो है, इन सभी शब्दों को पादरियों और प्राचीनों का सेवकाई को समझाने के लिए बाइबल ने इस्तेमाल, परमेश्वर का वचन ने इस्तेमाल किया है। इस बात को हम स्पष्ट रूप से देखते हैं जब पौलुस ने एफेसस कलीसिया का प्राचीनों को बुलाया था और उनसे कहा था, ऐसा ही पौलुस ने प्राचीनों से कहा था, इसलिए अपनी और पूरे जुन की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद आने वाले बेरे तुम में आएंगे, जो झूठ को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने का तेदरी मेदरी बातें कहेंगे। इसलिए जगते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन अंशु बहा कर हर एक को चितौनी देना ना छोड़ा, कहकर पौलुस ने उनको बताया था। यहाँ में हम प्राचीनों की जिम्मेदारी के बारे में 5 बहुत महत्वपूर्ण चीज हमने देखा है। सबसे पहले प्राचीन अपने आप पर चौकसी करना है, अपने आप पर ध्यान करना है। ये हम कभी कभी भूल जाते हैं। प्राचीन अपने आप पर, अपना विश्वास पर, अपना सेवकाई में अपने आप को देखना है, मैं कैसा कर रहा हूँ, ये प्रभु का सेवा में कैसा कर रहा हूँ, कहकर अपने आप को देखना है। दूसरा, प्राचीन परमेश्वर को लोगों के चौकसी करना है, उनको देखना है हमारा कलीसिया कैसा है, हम सही रास्ता में जा रहा है कि नहीं, कहकर परमेश्वर का वचन में हम आगे बढ़ रहा है कि नहीं, आत्मिक तौर में हम आगे बढ़ रहा है कि नहीं, उसको देखना प्राचीनों की जिम्मेदारी है। प्राचीन परमेश्वर की कलीसिया का रखवाली है, प्राचीन परमेश्वर की कलीसिया का रखवाले हैं। चौथा में
प्राचीन परमेश्वर को लोगों को झूठे शिक्षा से बचाना है। 5वां में प्राचीन आंसू बहा के हर एक को छिटौनी देना है। हम कलीसिया को देखभाल करने में आंसू बहाने का समय भी आता है। हमें जानना है वो हमारा कर्तव्य है। जैसा परमेश्वर ने नियुक्त किया है वैसे ही हमारे ऊपर में आ गया है, वो बोझ आ गया है हमारे ऊपर में, उसी में हम खुश होना जरूरी है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि कलीसिया को देखभाल करने में प्राचीनों की जिम्मेदारी कितना गहराई है। खासकर प्रेस्बिटेरियन कलीसिया में प्राचीनों का पद को हम बहुत महत्व देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण देते हैं। दूसरा कलीसिया जैसा कैथोलिक कलीसिया भी बोलिए, कैथोलिक कलीसिया, सल्वेशन आर्मी, बप्तिस्ट कलीसिया तक भी कहते हैं, ऐसा कोई कलीसिया नहीं है जो प्राचीनों को इतना महत्व देते जैसा हम प्रेस्बिटेरियन कलीसिया में देते हैं। प्राचीनों के बिना हम कलीसिया को नहीं चला सकते हैं प्रेस्बिटेरियन में। इसलिए हमारा प्राचीनों अच्छा होना बहुत जरूरी है। हमारा कलीसिया के लिए अच्छा प्राचीन उत्तम जरूरी हो गया। लोग बोलना चाहिए, जब हम बाइबल को देखते हैं, अगुवाईकर्ताओं के बारे में जब बाइबल बोलते हैं, बाइबल हमें बताते हैं ये लोग अच्छा आदमी होना चाहिए। क्या अच्छा आदमी हम सब लोग जानते हैं, हमें अच्छा प्राचीनों की जरूरी है। उसी के साथ साथ हमें आध्यात्मिक प्राचीनों, स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल एल्डर को हमें जरूरी है। दूसरा का आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें आध्यात्मिक प्राचीनों की जरूरी है। हमें प्रभु को प्रेम करने वाला प्राचीनों को जरूरी है। सच में प्रेम करने वाला प्राचीनों को जरूरी है। और उसी के साथ साथ हमें भी प्रभु का लोगों को, प्रभु का वीरों को, कलीसिया का सदस्यों को प्रेम करने वाला प्राचीनों की उत्तम जरूरी है। जहाँ भी प्रभु का भाई मानने वाला प्राचीन कलीसिया में होते हैं, उस कलीसिया में विकास आते हैं। एक अच्छा प्राचीन जो है हमेशा अपने पादरी के साथ भी अच्छा से सेवा कर सकते हैं। जहां पादरी और प्राचीन मिलजुल से कलीसिया में सेवा करते हैं, उस कलीसिया में परमेश्वर का आशीष भी आते हैं। पर जहां प्राचीन और पादरियों के बीच में शैतान ने राज किया है, उस कलीसिया में नुकसान आ जाते हैं। और दूसरा पॉइंट में पादरी और प्राचीन की सेवकाई में मिलजुल कर जब वो सेवकाई करते हैं, क्यों परमेश्वर का आशीष कलीसिया में लेके आते हैं। आसानी सब में हम बोल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इनको कलीसिया का अगुवाईकर्ताओं के लिए नियुक्त किया है। इसको हमें जानना जरूरी है। परमेश्वर ने इस आदमी का मेरा वजह से नहीं है, इस कमजोर आदमी, हमारा कमजोर प्राचीन की वजह से नहीं है, पर परमेश्वर के कारण से परमेश्वर ने नियुक्त किया है उस जगह के लिए इस व्यक्ति को। उस कारण से उसका हर कामों को परमेश्वर आशीष करते हैं। अगर सोचिए, अगर कोई व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने नहीं चुना है, वे लोग कलीसिया को अगुवाई करेंगे तो फिक्र करने के बाद होगा। इसलिए परमेश्वर ने इन लोगों को चुना है। एफिसियों 4:11 और 12 पद में परमेश्वर ने उसका कलीसिया को देखभाल करने के लिए ऐसा ही नियुक्त किया था। कुछ को प्रेरित के लिए नियुक्त किया, और कुछ को भविष्यद्वक्ता के लिए, और कुछ को चरवाहा और उपदेशक के लिए नियुक्त किया है, कहकर हमने देखा है। और रोमियो 13:1 पद में हमने ऐसा ही मिला, कोई अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की ओर से ना हो, कहकर परमेश्वर का वचन ने हमको बताया है। यहाँ में भी हम भी होशियार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बुलाने वाला परमेश्वर को छोड़कर अपना मन मर्जी से प्रभु का लोगों को गलत रास्ता में ले जाएंगे, तो हम जानते हैं राजा शाऊल के ऊपर में क्या हुआ था। जब परमेश्वर ने राजा शाऊल को इस्राएलियों का राजा के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया था, पर उसके जीवन को हमने देखा
उसका जीवन में राजा सूल ने परमेश्वर का भाई को नहीं माना था। उस कारण से उसका अंतिम जीवन में बुरे आत्मा ने राजा शाऊल को सताया था। इसलिए हम भी होशियारी में रहना बहुत जरूरी है। नहमाया 1:5 में हमने परमेश्वर का वचन ने हमको ऐसा ही बताया, अगर आप विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तीतर बीतर करूंगा के कर। कलीसिया का अगुवाई कर्ताओं को चेतावनी दिया है, हमें वार्निंग दिया है। तीसरा पॉइंट में परमेश्वर ने हमें इस पद में क्यों बैठाया है, हमें अगुवाई कर्ताओं के लिए क्यों नियुक्त किया है, उसका कलीसियों के कारण से, उसका कलीसियों के कारण से परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है। परमेश्वर के लिए उसका कलीसियों से बड़ा कोई भी नहीं है। पादरी से बड़ा है, प्राचीनों से बड़ा है। कलीसिया का सदस्य जो उनको देखभाल करने के लिए परमेश्वर, बिना कलीसिया का सदस्य कोई पादरी नहीं हो सकता है, कोई प्राचीन नहीं हो सकता है। इसलिए परमेश्वर का कलीसिया का सदस्य को हमें कभी तिरस्कार नहीं करना है। ये हमारा VIP है, इनसे बड़ा हमारा हृदय में कोई भी नहीं हो सकता है। उसको हमें याद करना बहुत जरूरी है। आज भी बहुत खुशी के आज भी मेरा मन खुशी है, क्योंकि हमने देखा है बहुत कलीसिया के सदस्यों को हमने देखा है, बहुत जो प्रतिनिधि भी नहीं है, वो लोग यहाँ में दूर दूर से आके उनके साथ हम परमेश्वर की स्तुति को कर रहा है। आप प्रेस्बिटरी में डेलीगेट्स नहीं हो सकते हैं, आप प्रतिनिधि नहीं हो सकते हैं, पर आप परमेश्वर का प्रतिनिधि है। प्रेस्बिटरियन का प्रतिनिधि नहीं होने से भी आप इसमें सुकून मिलेगा कि परमेश्वर आप परमेश्वर सबसे बड़ा प्रतिनिधि है। आपके पास ऐसा बेच नहीं हो सकता है, ऐसा बड़ा बेच नहीं हो सकता है, पर आपका बेच जो है पवित्र आत्मा का चिन्ह है। पवित्र आत्मा का बेच सबसे ज्यादा बड़ा है, इसलिए आप महत्वपूर्ण हैं। आपके कारण से रामपुर प्रेस्बिटरी में सफलता हो गया है, आपके कारण से परमेश्वर का आशीष रामपुर प्रेस्बिटरी में आए हैं। कलीसिया के सदस्यों के लोगों के कारण से यह है। आपका सेवकाई जो है, आराधना करने का सेवा, दूसरों को मदद करने का सेवा जो है, परमेश्वर ने आशीष दिया है। परमेश्वर ने कलीसियों के सदस्य के लिए अपना लहू बहाया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना स्वर्गीय जगह छोड़ के, अपना स्वर्गीय महिमा छोड़ के इस पृथ्वी में आया था। बाइबल ने सरसत बार हमको बताया है कि परमेश्वर का कलीसिया जो है पवित्र लोक है। आप लोग परमेश्वर का पवित्र लोक है। आपका नजर में आप कमी भी हो सकता है, आपका नजर में आप काफी भी नहीं हो सकता है, पर परमेश्वर का नजर में आप लोग कीमती है। परमेश्वर का नजर में आप लोग महत्वपूर्ण है। परमेश्वर में आप लोग सबसे बड़ा लोगों है, पवित्र लोगों है। इसको हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है। इसलिए इस छोटा सा समय में मैं 3 चीज प्रभु यीशु का सेवा से बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु का सेवा से उदाहरण के लिए, ताकि हम उससे सीख सके। सबसे पहले मत्ती 20:25 में जब प्रभु यीशु का चेलों आपस में लड़ रहा था और कहने लगा था कि उनमें सबसे बड़ा कौन है, प्रभु यीशु ने उनको जवाब दिया, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हकीम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा।
परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम्हें प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। जैसा कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा ताहत की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा ताहत करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। प्रभु का उदाहरण को सीखकर हमें भी दूसरों का सेवा, कलीसियों का सेवा करना हमारा कर्तव्य है। और प्रभु के जीवन से दूसरा पॉइंट में फिलिपियों 2:7 में हमें ऐसे ही बताया, यदि प्रभु यीशु परमेश्वर था फिर भी उसने अपने आप को दीन करके वो हमारे लिए दास बन गया और क्रूस के मृत्यु तक वो आज्ञाकारी रहा था। ये कर हमको बताए पौलुस ने भी प्रेरितों के काम 20 अध्याय में कहा था, तुम जानते हो कि पहले ही जब मैं एशिया में पहुंचा मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रह रहा था, अर्थात बड़ी दीनता से। हम परमेश्वर का सेवा को अहंकार और घमंडी के साथ नहीं कर सकेंगे। अहंकार और घमंडी के साथ प्रभु का सेवा को नहीं कर सकेंगे, प्रभु का लोगों का सेवा को नहीं कर सकेंगे। हमें दीनता से इस सेवा को करना जरूरी है। प्रभु का कलीसियों का आज्ञा को मानने के लिए, प्रेस्बिटरी का आज्ञा को मानने के लिए, चेतर का आज्ञा को मानने के लिए हमें दीनता आत्मा की जरूरी है। और तीसरा में सबसे अन्य प्रभु यीशु के जीवन में प्रार्थना का महत्व हमने देखा है। प्रभु यीशु का जीवन प्रार्थना में भरे हुए थे। जब प्रभु यीशु उसका सेवकाई करने वाला था, जब यरदन नदी में बपतिस्मा लेने वाला था, उस समय में हमने प्रभु यीशु को देखा है कि प्रार्थना करके हमने देखा था प्रभु यीशु को। जब वो 40 दिन और रात शैतान ने जंगल में उसका परीक्षा किया था, प्रभु यीशु ने प्रार्थना के द्वारा विजय पाया था। जब प्रभु यीशु अपना 12 चेलों को चुनने वाला था, प्रभु ने उस पूरे रात प्रार्थना के लिए समय बिताया था। इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले पूरी रात प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के लिए समय बिताया था। जब वो सिर्फ अपना सेवकाई में थकित में था, सेवकाई के कारण से होश में डूब रहा था, प्रभु यीशु ने अंधेरी रात में अकेले में पर्वत पर प्रार्थना के लिए समय निकाला था। चुपके से प्रार्थना के लिए पर्वत में गया था प्रभु यीशु मसीह। जब उसका आत्मा व्याकुल में था, उस कठिन रात में उस गेत्सेमानी बगीचे में जब सिपाहियों उसको पकड़ने वाला था, हमने प्रभु यीशु मसीह को पसीना बहा के प्रार्थना करके हमने देखा था। और उस अंतिम समय में भी जब वो क्रूस में प्रेरित में रहा था, हमने प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करके देखा था। प्रभु यीशु का जीवन में तो प्रार्थना में भर दिया था। इसको हमें सोचना बहुत जरूरी है। हमारा प्रेस्बिटेरियन में भी हमारा सबसे कमजोरी क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? हम बुद्धिमान लोग हैं। कलीसिया का तरीका का आगे और पीछे को हम सब कुछ जानते हैं। कुछ चीज नहीं है जो हम नहीं जानते हैं, फिर भी हम प्रभु के पास में समय बिताते हैं कि नहीं? हम कितना समय बिताते हैं? हमारा प्रभु से हमारा रिश्ता जीवित है कि नहीं? 2 कोरिन्थियों 3:6 में हमने ऐसे ही बताया, सब मरता है आत्मा पर आत्मा जिलाता है। सब मारता, सिर्फ शब्दों मारता है। इसका मतलब है नियम मारता है, सिर्फ नियम मारता है, पर आत्मा जिलाता है। आत्मा के बिना केवल धार्मिक नियम को जानना आध्यात्मिक मृत्यु है, स्पिरिचुअल डेथ। फरीसियों ने भी ऐसा ही किया था, सदुशीस ने भी ऐसा ही किया था।
लेकिन सच्चा आत्मा हमारे जीवन में सच्चा जीवन, समझ और परिवर्तन लेके आना है। हमारा जीवन में परमेश्वर ने परिवर्तन लेके आया है। सच्चा जीवन हमारे पास में है कि नहीं, इसको हमें सोचना जरूरी है। हम अपने आप पर चौकसी करना, हर बार चौकसी करना जरूरी होता है। प्रिय मित्रों, प्रभु का जरिया हम भी अपना जीवन को प्रार्थना के लिए खोलते हैं, अपना जीवन को प्रार्थना के लिए खोलते हैं। हट्टा आत्मा को बाहर फेंक के धन्यवाद का जीवन को, धन्यवाद को परमेश्वर को देते हैं। पहला पत्रास 5:2 से 4 पद में ऐसे ही हमने मिला, परमेश्वर के उस जून की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं, और ये दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, खुशी से और निज कमाई के लिए भी पर मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं, उन पर अधिकार न जताओ, वारंट जून के लिए अदृश्य बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। याकूब 3:1 पद में, हे मेरे भाइयों, तुम्हें से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि हम जानते हैं कि उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कलिसिया का अगुवाई करताओं और भी दोषी ठहरेंगे। परमेश्वर अपने पवित्र वचन पर आशीष दे। आमीन। अभी हम हमारा प्राचीन के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब खड़े हो जाते हैं, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस महान समय में, इस महान सभा में हमने आपका पवित्र आत्मा का कार्य को देखा है। पिता परमेश्वर, आपने हमें देखभाल करने के लिए एक और नया प्राचीन हमें दिया है। ओलेग देवता को, पिता परमेश्वर, श्री ओलेग देव, प्राचीन ओलेग देवता को आपने हमें दिया है। इस कारण से हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय से पिता परमेश्वर, हमारा नया प्राचीन को आपका पवित्र आत्मा में भर दीजिए। उसका हर मार्ग को सही करके पिता परमेश्वर, उसका सेवा में भी बोझ आएंगे, उसका सेवा में भी घटना आएंगे। पिता परमेश्वर, उन सबको सामना करने के लिए उनके पास हो लेना, और पिता परमेश्वर उसका जीवन में सफलता, सेवा में भी सफलता मिलने के लिए पवित्र आत्मा से आज ही से उसका बल दीजिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। অনেক ধন্যবাদ আমাদের কাকে উপদেশ দিয়েছেন, আমাদের সকলকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বক্তা ধন্যবাদ জানাই। আমাদের আজকে চাঁদা কালেকশন হয়েছে, চাঁদা সংগ্রহ হয়েছে 8,842, 8,842 টাকা। এই সময় অল্প কিছু স্থানীয় মণ্ডলী থেকে পশ্চাৎ থেকে ঘোষণা করা যাচ্ছে। এখন একটু সময় আপনাদেরকে আপনার সময় দেব ঘোষণা করার জন্য। মাননীয় মডারেটর, ধন্যবাদ দেই। আজকের এই অভিষেক অনুষ্ঠানে উপস্থিতি আমরা একটু করে শুনব।
এবং প্রথমত আমরা আজকে উপস্থিতি যারা আছি যতজন এই উপাসনাতে উপস্থিত সকলকে আহারের জন্য মেস থেকে নিমন্ত্রণ করা হচ্ছে। কেউ যাতে আমরা বাদ যাব না, সকলেই সারিবদ্ধভাবে আহার করে যাব। এবং রাস্তা বৃষ্টি দিয়ে একটু অসুবিধা হয়েছে, আমরা আস্তে ধীরে নামবো এবং খেলাধুলা না করে সারিবদ্ধভাবে আমরা যাতে আহার করি। এবং প্রথমে আহারে আমাদের প্রাচীন মিস্টার এবং পাস্টররা করবেন, কারণ প্রভুদের সভা আছে, ওনারা আবার সভাতে আসতে হবে। এবং আজকের উপস্থিতির সংখ্যা লোকাল মন্ডলী ছাড়া 800 জন। ধন্যবাদ। Just state, elder Muslim church elder said, whoever attendance is voting net, and you can see people from different districts as a right join this service, this elder ordination program, and we are all invited from the west side to join lunch. And it's not that the place where we are going to have our lunch is a little bit far from here, it's a field, but because of last night, a heavy rain, the place will be very slippery. So when you go there, let's give some space so that we don't fall or slip. That those things keep in our mind. And we are all invited to join the lunch. So no one shall skip this lunch. Everybody is requested, invited this lunch. আমরা এখন শেষ গান করবো দাঁড়িয়ে। নম্বর 196 196 সংখ্যার গান। তুমি ডেকেছো আমায় শুনেছি, তাই চরণে তোমার এসেছি। আমরা এই গান সকলে দাঁড়িয়ে করব এবং গানের পর আশীর্বাদ বাণী দ্বারা আমাদের সভা সমাপ্ত করার জন্য আপন লাভদেরকে আমরা সকলে দাঁড়াই। অনুগ্রহ, পিতা ঈশ্বরের প্রেম, পবিত্র আত্মার সহভাগিতা ও শান্তি উপস্থিত ভোগের সহিত এখন হইতে অনন্তকাল পর্যন্ত নিরন্তর হন।